First of all, welcome, and thank you for joining us today. So the first question that I want to ask you is that uh, why these themes, right? So because your grandfather was a ex chief minister, and then your father started the Lucknow Film Society. I mean, my grandfather was my maternal grandfather was a once a freedom fighter, then a politician, and then ultimately was the chief minister of Madhya Pradesh. And yeah, I mean, he was quite involved with the Congress, and then left it in the time of the emergency. I didn't think he just kind of retired from politics when he Sanjay Gandhi sort of came to the forefront, and he couldn't kind of handle either the JP movement or Mrs. Gandhi, so I think he kind of withdrew. I don't know if this is a good thing or a bad thing, but I mean, I haven't been brought up by him, or that's not my main area of influence. I'm a mathematician's son, and my father is a teacher, and I've lived off the salary of a teacher. So when you say grandson of a chief minister, it looks like you've grown up in some lap of luxury. I haven't. I don't think I've grown up in any poverty, but I've grown up with not everything, and I couldn't afford a steel badminton racket when I was young, and I mean, I didn't have Mercedes cars or anything. And when I was young, I had a car, I had a cycle. When I was doing theater in Delhi, I took a bus like everyone else. So don't get me wrong, I'm not. But of course, because my grandfather was quite powerful at one time, and this is when I was very young, right? So I mean, I in my adulthood, I haven't seen that kind of power. But yeah, I mean, I understood the trap of politics, and its inevitable corruption, and yeah, because of my father, I was independent, and I mean, to be political in India is somehow confused with being ideological towards a certain. I mean, I would call myself left, right? I would call myself independent left. I would call myself. I'm not ideologically bound. So like if Hazaro Khwaishein Aisi, if you see, it's about how life escapes ideology. You cannot encapsulate life in one ideology, but I think politics is about understanding how individual potentials are snuffed or restricted, or how we are repressed, and it's about how more and more you can be free, and more and more you can more people can actualize their potential. So I think that's my understanding of politics, and to understand that we are not living in the best of all possible worlds. जो मुमकिन है दुनिया वो अभी है नहीं. तो हम एक तरह से आजादी इस तरह से हर आदमी, और आइडियल दुनिया तो होगी नहीं, और किस तरह से आप जो है अपने आप को आप जो आपकी काबिलियत है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी फितरत है, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है. मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल वो है, और मैं समझने की कोशिश ये की क्योंकि मैं मैथमेटिशियन का बेटा था, इसलिए जब लेफ्ट की या सोवियत यूनियन की खत्म हो गया, व्हेन द वॉल केम डाउन, तो मेरी फिल्में नहीं खत्म हुई, बहुत सारे फिल्म मेकर्स की फिल्में खत्म हो गई, उनका अंत खत्म हो गया. आखिर में जो सरबहारा जो है लड़ाई जारी है करते हुए जो एक साथ चल रहे थे एक जुलूस में, वो अंत मुमकिन नहीं लग रहा था, तो वो डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन मेरे हिसाब से पॉलिटिकल फिल्म वो होती है जो सच्चाई को बिल्कुल देखे, आंख में आंख मिला के, और जो है सो है. तो हर चीज मुमकिन नहीं है, एवरीथिंग एंड धीरे धीरे कुछ चीजें इवॉल्व होती हैं, और आई थिंक वी आर इवॉल्विंग टुवर्ड्स वी विल. ऐसा लग रहा है इस वक्त मेरे ख्याल से कि दुनिया जो है बड़ी बहुत अंधकार में है,
और मेरे ख्याल से धीरे धीरे कहीं वो एक आजादी की तरफ बढ़ रही है। कुछ अभी रोड़े आएंगे कुछ दिन तक, लेकिन मेरे ख्याल से यही पॉलिटिकल सिनेमा अगर कोई बनाता है तो उसको ये समझ जरूरी है, और वो अपने अपने निजी तरीके से सिनेमा बनाए। हर चीज, कई चीजें पॉलिटिकल होती हैं संदर्भ में, in context things are political. I mean, one thing will be political, for example, just the fact of Malala wanting to go to school is a very political act in where she was in Pakistan, right? Somewhere else it might just be an ordinary thing, right? So it's a understanding of the context in which to live, and that is political. And my inclination is that politics governs us. मुझे ऐसा लगता है कि जो सियासत है वो आप पे असर करती है, आपकी निजी जिंदगी पे। तो अगर आप उससे टकराएंगे नहीं, अगर आप उससे जूझेंगे नहीं, अगर उसको समझेंगे नहीं कि कैसे आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो, तो आपकी निजी जिंदगी भी बहुत आजाद, मतलब आप फंसेंगे उस बहुत तरीके से। आपने हजारों ख्वाहिशों का बात किया, तो रिसेंटली सेड कि जब ये एनआरसी उसका जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू अगेन रीमेक हजारों ख्वाहिशें ऐसी, आर यू थिंकिंग? I made हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जो I mean, why should I remake? Somebody else should make, you know, I mean, and that film, if it is valid, then, you know, see it again, you know, I mean, because films are not about only specific backgrounds, no. You know, एक मेटाफर बन जाता है ना, एक मुहावरा सा बन जाता है, you know, I mean, it was based in the 70s and all that, but, you know, it can be a metaphor for all time, no. And today I think it works equally well, Hazaro. And one should make another film I'm trying to think of a film, and I'm working on a film. I've made Serious Men, which is based on a novel by Manu Joseph. That's also political in its own way. And yeah, you can make I'm thinking of a film about these times, which I'll work on. मैं बना रहा हूँ एक फिल्म। हजारों का जो आप अगर बोल रहे हैं कि अगर मैं उसका सीक्वल बनाऊं या हजारों पार्ट 2 बनाऊं, या उन किरदारों का क्या हुआ, what happened to those characters, and if you understand, it's an interesting thing. I'm working on a script which is a kind of a sequel to Hazaron. You had told in an interview that there would be a fourth. You had thought of a fourth transition while writing Hazaro Khwaishein, based in 2010 or 2020. So, if it had to come, what would it be, and would it have been similar to the current political scenario? Well, in a strange way it was, and a strange way it wasn't. You know, I mean, you know, why I didn't do it is because, you know, I thought, you know, but in some ways it's true. It's as much of what was described in the 4th chapter is kind of true. Yeah, I think so. And it's, in fact, what has happened is far worse. And what has happened to us as people, not merely as a system, and what somewhere there is something which is drastically gone wrong with us. I'm trying to figure out. It's not merely, I don't know, I don't belong to the tribe that, you know, merely as lays blame on, you know, I think somewhere unconsciously we propel leaders who feed our dark compulsions or desires, you know, and we put them into power. So I don't know what is wrong with a lot of us, and what is wrong with the upper middle class or the middle class of this country, that we have allowed things like this to come to pass. And I'm not merely talking about BJP. I think it's overall the rot is pretty bad.
and it'll take some time, but perhaps, I mean, when things go really bad, then something will emerge. Something very new has to emerge. Something the young have to find something. A system has to emerge. A movement has to emerge. For example, in America, Black Lives Matter seems to have propelled something which is more than just Black Lives. I mean, it's of course Black Lives Matter has become a metaphor for equality, a metaphor for fight against injustice, metaphor for correcting the wrongs of history, metaphor for just confronting authority, injustice, looking injustice in the eye. I think it's something like that needs to happen in India. So the current movies, don't you think they are trying to bring some revolution against this, or is it still growing and it has not reached where it has to reach? Which movie? If I talk about Anubhav Sinha, his recent movies, he's talking about these things. So what do you think? Anubhav is a very interesting transition from a kind of filmmaker to what he. I mean, I've been part of this transition. He's like my younger brother, and I see his film Mulk. I find Mulk very interesting as a film and very layered. And there is the Rishi Kapoor character, the Taapsee Pannu character, there's the Rajat Kapoor character. There is a lot of layers in the film. There is the Manoj Pava character. There are the women, right? And it's very interesting. The Nina character, the character, very interesting. I think, in one sense, Anubhav is talking about things. He has opened conversations. He has made films which have, try to explore. I mean, even if you see Thappad as an idea of a very normal person who just at one point has to confront her own life, when she realizes the life that she's been living because of one incident. And then she just refuses her entire life and tries to reimagine herself again and wants to. She can't imagine going back. I think it's very interesting. I mean, what Anubhav is doing. I mean, I often like Anurag's films. I've been a big votary of his films. So I think Anurag Kashyap's films, even Chok, if you see, I mean, it's in a strange way he describing a lot of things that are happening in this country, and a lot of emotions and a lot of feelings. I mean, I think there's a lot of younger filmmakers. I like Newton quite a lot. I like Anand Gandhi's work quite a lot. There's a lot of. I mean, I think the last film of Vishal's, which I really liked, was Haider, and I like the idea of the Irfan character in it a lot. Was Rudar जो था, disappeared कश्मीर का जो एक घोस्ट जिसके बारे में बात नहीं होती. इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट था विशाल का बहुत, हैमलेट को लेके. बहुत सारे इंटरेस्टिंग यंगर फिल्म मेकर्स हैं, रीजनल, जिसको आप रीजनल कहते हो, कोट्स मराठी में, मलयाली में. वो मुझे लगता यंग को लोगों को सिर्फ बाहर की फिल्में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की फिल्में देखनी चाहिए. साउथ की फिल्में देखनी चाहिए, हिंदुस्तानी फिल्में साउथ वालों को देखनी चाहिए. एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बन सकता है सिनेमा के जरिए. और एक बड़ी अच्छी बात है आजकल की डॉक्यूमेंट्री जो है वो फिर से थोड़ा सा वैलिड हो गई है, तो लोग उस तरह की फिल्में भी बना रहे हैं. उस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म को, जो लाइन है फिक्शन फिल्म में और डॉक्यूमेंट्री में थोड़ी सी ब्लर हो रही है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. आनंद पटवर्धन तो खैर बहुत अच्छा है ही है. वो तो बहुत सालों से बना रहा है. प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस
1977 से लेके अभी तक जो है, और राम के नाम, और तो उसकी आई थिंक आनंद पट अगर हिंदुस्तान को एक तरह का समझना है तो आनंद पटवर्धन की फिल्में देखना बहुत जरूरी है। तो आनंद पटवर्धन अकेला है मेरे ख्याल से जो आप उससे अग्री करें, नहीं अग्री करें, और जरूरी नहीं होता कि हर चीज से आप अग्री करें। एक प्रोवोकेशन है, एक नजरिया है, आप उससे इंटरैक्ट करिए, बट वो अपनी जमीन पे और अपने तरह की सिनेमा से हटा नहीं है। और आनंद पटवर्धन की फिल्में देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है सबको। तो मुझे लगता है बहुत तरह के अभी यंगर फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, ओटीटी स्पेस में भी फिल्में बन रही, चीजें हो रही हैं, वहां पे भी इंटरेस्टिंग है मामला। आपने नए आप जब एक्टर्स आ स्टार्ट रहे कर हैं, रहे नए थे। नए 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 तरीके की चीजें। अब हर चीज मुझे अच्छी लगे और नहीं लगे उस जरूरी नहीं है, बट कम से कम खलबली तो मची हुई है ना, एक तरह तरह की काम हो रहा है ना। मुझे तो मेन स्ट्रीम में सुभाष कपूर का भी काम इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि यू नो अब जॉली एलएलबी का पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट उसने हैंडल किया था, और जो जिस तरह का जो जो विषय था, तो बहुत ही बोल्ड था ना, और एक जरूरी था। एक तरह का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है सुभाष कपूर में, विच इज इंटरेस्टिंग। आप हर तरह से फिल्में बने, और वो फिल्में जो हैं वो थोड़ा सा जमीन से कनेक्टेड हो, जिंदगी से कनेक्टेड हो। वो कोई जरूरी नहीं है कि फिल्में जो है वो आर्ट, कला है ना, क्योंकि तो आपको आप कला में कोई जरूरी नहीं है कि हर फिल्म जो है बड़ी रियलिस्टिक हो। रियलिज्म जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट द ओनली फॉर्म, राइट। हर तरह की कला में कोई रियलिज्म कोई जरूरी नहीं है। आप फैंटेसी भी फिल्म बना सकते हैं, आप म्यूजिकल भी बना सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल भी बना सकते हैं। आप आपकी फितरत पे है। और मतलब मुझे लगता है कि वो जो तरह तरह से फिल्में बने, हर नजरिए से फिल्में आए, मतलब कोई छोटे शहर में बैठा हो, जबलपुर, जगदलपुर, जमशेदपुर में, वो बम्बई आया ही नहीं हो, आज तो मुमकिन है कि आप वर्कशॉप भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स के साथ कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप, बैठ के एडिटिंग हो या जो भी है, कहीं पे भी सीख सकते हो। आप कभी बम्बई आए नहीं और वहां से किसी ने फिल्म बनाई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है अपने जैसे कि हम यहाँ से उनको देखते हैं, मतलब नजर आपकी बाहर से देख रहे हो आप, या जो बाहर छोटे शहर से चला आया, अब वापस मुड़ के अपने शहर को देखता है। लेकिन एक नजरिया ये सकता है कि वो भी तो हो सकता है जो कभी गए ही नहीं और देख रहा है अपने आप को, और अपनी कहानी सुना रहा है हमको। तो वो कहानियां मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, जो हर तरफ से निकलेंगी हम, ये बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी है और इस तरह, और वो भी पॉलिटिकल है कि मतलब एक जिस तरह से कभी कभी एमेचर थिएटर होता है, वैसे किसी भी शहर में बैठ के कोई 10 लड़के लड़कियां मिलके एक फिल्म बनाए, और वो फिल्म कहीं पे भी जा सकती है, आज मुमकिन है। तो मेरे ख्याल से वो भी पॉलिटिकल एक्ट और इंटरेस्टिंग है। इमरजेंसी के टाइम से आप और अब तक के काम कर रहे हैं, तो आपको एज अ ये जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, तो एज अ फिल्म मेकर आपको वो कैसे चेंज किया मैंने है? इमरजेंसी के बारे में फिल्म बनाई, मैं इमरजेंसी से नहीं बना रहा हूँ। मेरा मतलब बाल मैंने डाई नहीं किया, इसका मतलब नहीं पासिंग नहीं डाल दो। नहीं नहीं सर, वो मैंने टाइम। इमरजेंसी के बारे में फिल्म बनाई है। इमरजेंसी एक और था, उस वक्त के बारे में बनाई। उस अगर आप फिल्म देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरे इमेजिनरी बड़े भाई बहनों के बारे में। तो आज के संदर्भ में आज समझना चाहिए, और आज के संदर्भ में फिल्म बनानी चाहिए, और मैं तो फिर से फिल्म बनाऊंगा आज के संदर्भ। वो मुझे थोड़ा सा अब फिर से जो है पॉलिटिकल सिनेमा जो है वो थोड़ा पुकार रहा है, और आज के समय को समझना जो है, और
और आज के समय से इंटरेक्ट करना मेरे ख्याल से जरूरी हो गया। तो मैं जो अगला काम करूंगा, जो मैंने सीरियस मैन किया है अभी, अनुज जोसेफ की नॉवल है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है। इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो एक दलित आदमी के बारे में जो विक्टिम नहीं है, जो जो सुलूक उसको लगता है उसके पूर्वजों के साथ हुआ है, तो एक अजीब सा एक अंदाज है उसका, एक थोड़ा सा बेफिक्र और थोड़ा सा मजेदार। वो थोड़ा सा एक मजाक सा करता है समाज पे, खेल सा करता है, खेल में फंसता है फिर। तो वो भी इंटरेस्टिंग फिल्म है, बाप बेटे की कहानी है। तो मुझे वो भी पॉलिटिकल फिल्म है एक तरह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल नहीं लगती होगी, लेकिन मैं तो आज के जमाने में यंगर लोगों को बनानी चाहिए। और सब लोग मेरे ख्याल से, अब जैसे आप अनुराग का सिनेमा देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल की तरफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल की तरफ जा रहा है। मेरे ख्याल से वो, उसका सिनेमा उस तरफ जाएगा। और मेरे ख्याल से देखिए, पॉलिटिकल क्या है, थप्पड़ भी तो पॉलिटिकल फिल्म है एक तरह से। आर्टिकल 15 भी पॉलिटिकल फिल्म है, अब मुल्क भी पॉलिटिकल फिल्म है। तीनों अलग अलग एक तरह से ऑब्वियस पॉलिटिकल फिल्म तो है नहीं। तो पॉलिटिकल एक एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एक नजरिया है। हर फिल्म एक्चुअली पॉलिटिकल होती है, कहीं तो उसमें सियासत होती है। आप सियासत या तो इस तरफ है या उस तरफ है, आपका एक नजरिया है। अगर आप स्टेटस को है और आपकी फिल्म जो है तकियानूसी चीजों को की तरफ इशारा करती है या उसकी हिमायत करती है, तो आप राइट विंग पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल को लेफ्ट विंग ही तो नहीं होता ना। तो बगैर सियासत तो हमारी जिंदगी पर असर करती है ना हर तरह से। तो आप कोई ना कोई पॉलिटिकल नजरिया तो हो गई आपकी फिल्म में। आप किसी भी, अगर आपका नजरिया पॉलिटिकल है, तो आप कोई भी विषय पकड़ेंगे तो उसमें आपका नजरिया तो आएगा ही ना। चाहे धारावी हो, चाहे चमेली हो। अब बहुत लोग बोलते हैं चमेली पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो है पॉलिटिकल फिल्म, क्योंकि वो तो जब मैंने बनाई थी 2004 में, तो एक फेरी टेल है। उसका एक स्ट्रक्चर जो चमेली का है वो फेरी टेल का है। वो फेरी टेल ये कि एक दिन, एक बारिश के दिन में, एक बम्बई के बरामदे में, जहाँ पे एक एक धंधे वाली और एक कॉर्पोरेट आदमी की मुलाकात होती है। और क्या होता है, वो शायद मुमकिन नहीं है, तो अगर ये होता तो क्या होता नुमा वो फिल्म है। लेकिन वो एक, उसका क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि एक धंधे वाली का हक है कि वो ना कह सके कभी भी। उसको अगर उसका दलाल कहीं भेजना चाहे, तो दलाल को बोलेगी ना, और वो उसका हक है। उस नजरिए से बहुत कम लोगों ने चमेली को देखा, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा है, वो क्रिटिक्स भी ऐसे हैं कि ठोक ठोक के बोलना पड़ता है, देखो 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 मेरी फिल्म पॉलिटिकल है, उसका विषय वस्तु ये है, देखो देखो उसका नजरिया ये है। हम लोग का हर चीज बतानी पड़ती है बार बार। पर चमेली भी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल फिल्म, मेरी हर फिल्म पॉलिटिकल होगी, क्योंकि मैं हूं ही वैसा, मेरा नजरिया ही वैसा है। जैसे आप परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग उसको रोमांटिक मूवी के जैसा परस्यू करते हैं, कुछ लोग हजारों ख्वाहिशों, कुछ लोग उसको पॉलिटिकल मूवी के जैसे परस्यू करते हैं। तो आप हाँ, उन दोनों कैसा बैलेंस करते हैं, मतलब आप? आप कहानी सुनाते हैं। कहानी जो होती है या फिल्म होती है, उस वो एक में भाई जिंदगी से जूझती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में होती है। उसमें सियासत भी होता है और बहुत सारी चीजें हैं। आप कहानी किस तरह से गढ़ते हैं उसको, अपेरेंटली आप, ह्यूमन इमोशन की भी तो कहानी होती है ना। आप हजारों को इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि एक लड़के की कहानी है जो एक लड़की से इश्क करता था, लेकिन जब उसको वो मिली तब उसको पता ही नहीं था। ऐसे भी तो देख सकते हैं हम। इट्स अबाउट अ बॉय हु लव्ड अ गर्ल, बट व्हेन ही गॉट हर, ही डिडंट इवन नो इट। सो दैट्स अ सैड स्टोरी इन वन सेंस। इट कैन बी सीन एज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु, एक लड़की जो एक जिंदगी में अपनी जिंदगी में अपना नजरिया खोज रही थी। और वो एक रिश्ते, उसके रिश्ते थे भी
और हर मतलब एक दोस्त था उसका जो उसकी मदद करता था, जिससे कभी उसने ऑब्वियस इश्क किया नहीं, लेकिन जब आखिर में उसको उसकी जरूरत थी तो वो उसके लिए खड़ी थी। वो आखिर में उसका कंधा था और उसका सर था, और वो आखिर में थी उसके साथ। तो इट्स अबाउट, एक तरह से आप उसको बोल सकते हो वो इश्क की कहानी है। वो एक सूफियाना इश्क है, ऑब्वियस सेक्सुअल प्यार नहीं था उसका। तो उसको आप किस तरह से भी देखो, हजारों को आप सिद्धार्थ के नजरिए से देखो, आप विक्रम के नजरिए से देखो, आप गीता के नजरिए से देखो। देखिए, अच्छी फिल्में बन जाती है, जो बन जाती है तो फिर आप, हर आदमी को हक है उसको अपनी तरह से देखना, फिर वो ऑडियंस की हो जाती है। फिर ऑडियंस उसको जिस तरह से भी देखते, वो सिर्फ अच्छी फिल्म जो है वो फिल्म मेकर के टैलेंट तो होता है, लेकिन कभी कभी वो कुछ चीजें एक्सीडेंटली भी होती हैं, और वो फिर जब वो बन जाता है तो वो फिर वो एक तरह से जिस क्लासिक का दर्जा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हर वक्त, हर अलग वक्त में आप उसको जब देखेंगे तो आप उसमें अलग चीजें देखेंगे। जैसे कि एक कविता होती है, जब आप 20 साल की उम्र में उसको पढ़ते हैं तो वो कुछ और होता है उसका मतलब, और जब आप 50 साल की उम्र में उसको पढ़ते हैं तो आप कुछ और मतलब निकालते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या समझे फिल्म के बारे में। उसकी फिल्म है, जब बन गई तो फिल्म आपकी है। जब आप बनाते रहते हो तो आपका जो भी परसेप्शन है वो, आप अगर नहीं आया तो आपको चलेगा। अगर उन्होंने कुछ, आपका जो परसेप्शन था, आपका कुछ मैसेज था जो आप दिखाना चाहते थे आप बनाते समय, तो वो नहीं आया या आया तो उससे आपको मतलब। नहीं, अब वो तो मेरा इंटेंशन जो है वो अगर नहीं आया तो मेरा फेलियर है। लेकिन देखिए, हर अच्छी चीज होती जो है ना, वो जो कहना चाहती है उसके अंदर, अभी मैं हिंदी बोलता हूँ, कि उसके अंदर जो उसका उल्टा है वो भी निहित होता है, कि एवरीथिंग दैट इज गुड कंटेन्स द ऑपोजिट ऑल्सो। उसमें उल्टा पर्सपेक्टिव भी होता है, आप उसको कई पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, तब वो चीज अच्छी होती है। अच्छी चीज वो होती है, पॉलिटिकल अच्छी चीज वो होती है जो आसान जवाब ना दे, जो आपके मन में सवाल पैदा करे। हर आदमी के अपने जवाब हो, मैं आपको कोई जवाब आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, मैं आपके दिमाग को थोड़ा सा ट्रिगर करके, थोड़ा सा उसको उकसा के आपको एक जर्नी, एक यात्रा में भेजने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आप अपने इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकते, आप अपनी कहानी गढ़ें, आप मेरी फिल्म को अपने नजरिए से देखें। आपके जो सवाल उसको फिल्म पैदा करती है वो आप अपने जवाब ढूंढें, मैं आपको कोई आसान जवाब ना दूं, तब वो असल पॉलिटिकल फिल्म एक्चुअली। जो आसान जवाब देती है कि ये हो गया और हाथ पकड़ा और क्रांति हो गई, वो पॉलिटिकल फिल्म नहीं, वो प्रोपेगेंडा फिल्म। आपने अभी हजारों ख्वाहिशें जब बात कर रहे थे, आपने गीता का कैरेक्टर बारे में बात किया, या जी, चमेली का कैरेक्टर के बारे में बात किया। हाँ हाँ आपके हाँ। मूवीज में अगर धारावाहिक में भी देखा तो उसमें भी वो फीमेल कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हम्म, हैं। तो आप हम्म। जब बनाते रहते वो कैरेक्टर, तो फीमेल कैरेक्टर के लिए कुछ आप दूसरे कैरेक्टर से कंपैरिजन में अलग वे में वर्क करते हैं या सेम वे में वर्क करते हैं, और कैसे क्रिएट करते हैं फिल्म? आपके अंदर मेरे ख्याल से, मैं तो कभी ऐसा इतना ज्यादा सोचता नहीं। मेरे से कई लोग पूछते हैं हजारों में आप सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई किससे करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मैं गीता से करता हूँ, क्योंकि ना तो मैं नक्सल हूँ, ना तो मैं फिक्सर हूँ। तो अगर मैं किसी कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करता हूँ तो गीता से करता हूँ। तो मैं वैसी औरतों को लिखता हूँ जैसी मुझे औरतें मिली हैं, जो मुझसे टकराई हैं, जिस तरह की आजाद ख्याल औरतें जिन्होंने मेरी जिंदगी को शेप किया है, जिन्होंने मेरी जिंदगी की समझ को शेप किया है, और जो फेमिनिन एस्पेक्ट मेरे उसमें भी है। देखिए, ये जो मैचो
और मर्द नुमा मेल जो है वो मैं हूं नहीं। हूं 6 फुट 2 इंच का और बड़ा लगता हूँ, बट वो मुझे थोड़ा सा जो फ्रेल जो होते हैं ना, मनु जोसेफ ने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि कलेक्टर ऑफ फ्रेल मेन। तो जो थोड़ा सॉफ्ट हो, जिनमें फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक हो, थोड़ी सी थोड़ा सॉफ्टर लोग हो, राइट। तो वो अगर आप समझ में आएगा तो आप औरतों को भी उस तरह से ही समझेंगे। जब मैंने फिल्म लिखना शुरू किया था हजारों, तो सब बोलते थे ये क्या, किस तरह की लूज कैरेक्टर औरत है ये गीता, पहले एक आदमी से प्यार करती है, साथ में दूसरे को लटका के रखती है, तीसरे से शादी करती है, पहले के पास वापस चली जाती है, दूसरे को फिर भी दोस्त करके लटकाए रखती है, और आखिर में अब। लेकिन अगर आप औरतों को ठीक से जानते हैं तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स की कैपेबिलिटी उनमें होती है, और हर इंसान में होती है। वो अलग इश्क अलग अलग तरीके का होता है, बट ये कि एक ही से होगा वो कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मतलब मैं होता होगा जिस तरह से असर हुआ होगा, तो मैं बगैर बहुत ज्यादा सोचे उसको मैं औरतों को अपने अंदर जाके लिखता हूँ। और जो अपने अंदर जाके आप लिखेंगे तो आपको फेमिनिन, अगर आपने अपने साइड को, जो आपका साइड है फेमिनिन, उसको अगर आप टटोल लेंगे तो आप लिख लोगे। आपके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बना था बाबरा मन, तो उसमें आपने बात किया था, ऐसे आप डिस्कशन कर रहे थे कि फिल्म मेकर वो फिल्म्स वो बनाते हैं जो बस टैलेंटेड ना हो, पर दे आर आल्सो स्मार्ट। हाँ, आप तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते नहीं हैं? क्या? देखिए क्या है, मीडियम ऐसा है कि इसमें अब कम होता जाएगा ये धीरे धीरे, और अगर इसकी टूल्स जो है वो आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद, हर हर स्मार्ट पढ़े लिखे टेक्नो savvy बच्चे के पास होंगे तो बात दूसरी है। नहीं तो ये जो मीडियम है इसमें पैसे बहुत लगते हैं। इसमें किसी को आप पे भरोसा करना पड़ता है कि वो आप मतलब आपके ख्वाब पे भरोसा करना पड़ता है किसी, तो यू हैव टू सेल अ काइंड ऑफ ड्रीम, नो। तो वो एक बड़े फिल्म मेकर है बर्तोलुची, वो कहते थे कि बड़ा फिल्म मेकर वो है जो किसी दूसरे को पे भरोसा, अपने पर भरोसा दिलाता है अपना, और ये दूसरा उस पे पैसा लगा ले। तो ग्रेट फिल्म मेकर इज somebody who can get other people to put money on his film, अगर उसके बाद हमको अच्छा है कि बुरा है। तो ये जो फिल्म मेकर वो भी है जो बहुत लोगों के साथ केओस में काम कर सकता है। वो मतलब एक फिल्म चल रही है, उसमें 50 चीजें गड़बड़ हो रही हैं, उसमें लाइट वाला है, उसमें ये है, उसमें किसी की पर्सनल है, किसी को कुछ पानी बरसने वाला है, कुछ कुछ पता नहीं क्या है। उस सब केओस के बीच में जो कहीं फोकस करके अपनी फिल्म बना ले जाए, उस तरह की एबिलिटी जो है एक फिल्म हर आदमी में नहीं होती है। हर आर्टिस्ट में कई लोग होते हैं, मुझे नहीं करना, मैं अकेले बैठ के मैं उपन्यास लिखूंगा, मैं कविता लिखूंगा, मैं ये करूंगा। यहाँ मतलब बहुत सारे, फिर प्रोड्यूसर को हैंडल करना, पैसे को हैंडल करना, ये सारी चीजें, बजट को हैंडल करना, शेड्यूल को हैंडल करना, ये सब हर मतलब एक इमोशनल जो आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कोई भी आपको आके कुछ भी कह दे, कोई भी बेवकूफ आपको बोले है क्या है, बकवास है, ये सब सुनने की आप में कुवत होना, आप उसको जज कर सको और फिर फिल्म फिर भी अपनी बना सको, ये कैपेबिलिटी जो है वो सब में नहीं होती। अगर आप में ना सुनने की, और आप घबरा जाए लोगों से, या कोई फेलियर से आप बहुत घबरा जाए, तो इस मीडियम में मत आओ, क्योंकि बड़ा टेंशन का मीडियम। अगर ये सब झेल सकते हो तो बड़ा अच्छा मीडियम भी है, और बड़ी खुशी भी है, और आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी है। लेकिन डिफिकल्ट है, एक 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 इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए इसमें आने के लिए।
आपका जो भी आइडियोलॉजी है, समझिए आप कुछ, आपका कुछ थिंकिंग है, वो किसी और का, आपका टीम में क्रू में हो गया या एक्टर्स का हो गया, जो भी वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उनके साथ वो नहीं मैच हो रहा, तो आप कैसे एक बीच में आते तो यार वही तो, एक डायरेक्टर जो होता है उसका काम ये है कि सामने वाले को अब हर तरह से आपको मतलब अपनी फिल्म बना के रखनी है। आपका एक ख्याल था, उसको कैसे आप मेंटेन करके रखो। बीच में बहुत सारे और लोग आते हैं, वो आपकी फिल्म को, उसमें उनका योगदान होता है, वो फिल्म को बेहतर भी बनाते हैं। अभी आप हजारों की कल्पना नहीं कर सकते चित्रांगदा के चेहरे के बगैर। तो आप दूसरों के साथ काम करने की आदत तो, और आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप कैसे समझा के कैसे लोगों को कन्विंस कर सको। देखिए, कोई बहुत टैलेंट है, आप इरफान खान के साथ काम कर रहे हैं, तो इरफान खान के साथ जब काम कर रहा था मैं, तो आप जिस काबिलियत का वो एक्टर है उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि यही ऐसे करो, कोई एक्टिंग करके तो नहीं दिखा सकते ना उसको। तो उसको आप लेते हो क्योंकि उसको आप जो सुझाव दोगे और जो स्क्रिप्ट दोगे और जो माहौल दोगे, उसमें फिर वो कुछ अपना कुछ करेगा, कुछ सडनली वो कुछ खिलेगा। और जब वो खिलेगा तो आपकी फिल्म खिल जाएगी। तो वो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि दूसरे आर्टिस्ट को कैसे आप वो माहौल दो ताकि वो खिले, है ना। ये तो आपकी, आप जब आप बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करोगे और जो जिनमें काबिलियत ऐसी है, तो आपको ये, आप में समझ होनी पड़ेगी। और फिर कभी कभी होता है कि कोई आपको ऐसा भी मिल गया जिसमें नहीं है काबिलियत, तो फिर आप उसको ठोक पीट के वैसे ही करवाओ जो आपको करवाना है, और वो भी काबिलियत आप में होनी चाहिए। तो इट्स अ थोड़ा ट्रिकी है। इट्स अ कैसे होता है वो हो जाता है, आपको समझ में आ जाती है धीरे धीरे चीजें। और पूरी तरह से जो आप चाहोगे कल्पना करके चले थे, वो पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा शायद बहुत कम बार मुमकिन होता है। और अगर आप 90% वो कर पाओ जो आप करने चले थे, तो मेरा ख्याल से काफी अच्छी फिल्म बनती हैं? कोई भी आपको आइडिया आता है, कैसे आता है, यूजुअली कैरेक्टर्स के थ्रू या कोई इंसिडेंट के थ्रू, और है। अलग अलग लोग की अलग अलग प्रोसेस होती है, तो किसी एक का आइडिएशन प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है जैसे कि बड़ी स्ट्रिक्टली फिल्म लिखते हैं, है ना, कि मतलब मैं बिगिनिंग मिड एंड मुझे पता हो, मैं कहानी पूरी रच दूं कि मतलब मुझे नहीं पता होता। कई लोगों को पता होता है कि भाई शुरुआत ऐसी होगी, ये होगा, सीन में ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कुछ परेशानी मेन कैरेक्टर की आएगी, फिर वो ऐसा ऐसा गुजरेगा इन परेशानियों से। आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि अब वो फंस गया, वो शायद नहीं निकल पाएगा, फिर कैसे वो निकल गया इस परेशानी से। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में कई लोग फिल्म बनाते हैं, और वो वाजिब है, अपना अपना मेथड वाजिब है। मुझे नहीं पता होता कि मैं क्यों कोई फिल्म बना रहा हूँ। कुछ फैसिनेट कर रहा होता है आपको कोई चीज, अब आप खोजते हो कुछ चीज को, तो आपको अंत जो है आपको पता हो। अब मुझे नहीं पता था हजारों का अंत क्या होने वाला है जब मैं लिखा, मुझे नहीं पता था चमेली का अंत क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था खोया खोया चांद का अंत क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता था बहुत सारी फिल्मों का जो अंत है वो क्या होने वाला है, धारावी का क्या होने वाला है, यो मंजिल तो नहीं का, बहुत सारी फिल्मों का मुझे नहीं पता। तो हजारों, तो वो हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। आप, मुझे कुछ चीज फैसिनेट करती है, कोई एक एक उसके अंदर कुछ एक, जैसे इस वक्त मुझे लग रहा है कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो रास्ते में है, और वो रास्ते में उसके साथ क्या होता है। तो आज के माहौल में बहुत कुछ हो सकता है ना। अब मानिए कि वो आदमी मुसलमान है और वो गाड़ी चला रहा है, और उसको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब मुझे ये पता है,
अब मैं उसको खोजूंगा कि क्या होता है। ये मुझे अभी ये इंटरेस्ट कर रहा है, समझ रहा है? तो हर आदमी का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई करेक्ट तरीका है, हर आदमी का अपना तरीका होता है फिल्म लिखने का, सोचने का, कैसे कुछ फैसिनेट करता है, किसी को कुछ मूड फैसिनेट करता है, किसी को कोई लोकेशन फैसिनेट करती है कि एक घर दिखा, उसके बगल में कुछ पानी है, उसके पीछे एक पहाड़ है, अब आप वहां पहुंचे और आपको लगा यहाँ एक कहानी हो सकती है, अब वहां आप कहानी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप कहानी पे आ सकते हो, आप अपने फिल्म के पे आ सकते हो, आप उस लोकेशन से आ सकते हो, आप किसी कैरेक्टर के जरिए आ सकते हो कि आप गुजरे और आपको एक अजीब सा आदमी सड़क पे देखा, वो उसको आपने फॉलो किया, फिर सोचा कि अब चलिए उसको छोड़ के अभी आपकी कल्पना का एक हिस्सा बन गया, आपके इमेजिनेशन का कैरेक्टर बन गया। अब उस कैरेक्टर को लेके आप कुछ कहानी गढ़ सकते हो। आप किसी की निजी जिंदगी, कोई बायोपिक हो, आपको किसी की जिंदगी फैसिनेट कर सकती है, कैसे भी बना सकते हो। कोई भी आप तरीका, कोई एक तरीका नहीं है। सर आपने मु- एफबीआई मूवी। मुझे मुझे कुछ आइडिया फैसिनेट करता है, मुझे वक्त में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोग दिखते हैं, मुझे कुछ लोग किसी क्राइसिस में दिखते हैं, फिर मुझे धीरे धीरे खोजता हूँ कौन है, उनको नाम देता हूँ, फिर वो कुछ उनसे कहानी बनाता हूँ। मैं खुद समझना चाह रहा हूँ आज के वक्त को। तो मैं जैसे फिल्म बनाऊंगा तो उस फिल्म के जरिए मैं खुद समझना चाह रहा हूँ आज का वक्त, आज के वक्त के बारे में, और फिर वो मेरी फिल्म जो है वो मेरी समझ होगी उस वक्त की, जो मैं आप तक ले जाऊंगा। आपके सारे मूवीज में एक तरह से मतलब आपका कुछ रिजेम्बलेंस रहता है, ऐसे बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि वो विक्रम, हजारों ख्वाहिशों में विक्रम हो, या खोया खोया चांस, तो आप खुद ही बोलते हैं कि बहुत सारा आपका उसके अंदर कुछ है। तो आपके आइडियाज में, आपके फिल्म्स में एक तरह का आपका एक छवि देखते हैं आप, तो आपको फैसिनेट करता है, या आप फिर कोई भी आइडिया में फिर आपका छवि आ जाता है, कैसे? यार हर फिल्म जो होती है कहीं उसमें आप तो होते ही हो ना। मुझे जिंदगी का समझना, मेरी जो निजी जो मैं जो जिंदगी से गुजरा हूँ, मतलब वो अकबर अलाहाबादी कहते थे शेर अकबर में कोई कश्म करामात नहीं दिल पे गुजरी है और कोई बात नहीं। वो वैसे भी हो सकता है, कुछ हर चीज आपके दिल पे ही नहीं गुजरी, किसी और पे गुजरी। फारसी लोग कहते थे, पर्शियंस कहते थे कि व्हाट इज अ ग्रेट स्टोरी, दैट विच कंबाइन्स व्हाट यू हैव सीन एंड हर्ड विथ व्हाट हैज हैपेंड विथ यू। आपका तजुर्बा जिंदगी का और जो आपने देखा सुना है, या आप उसको उल्टा देखें तो जो आपने देखा सुना है उसको आप अपनी जिंदगी के नजरिए से, जो आपके साथ हुआ उस नजरिए से देखें, तो उसको कहानी होती है। नहीं तो आप, मेरी कहानी में और आपकी कहानी में फर्क कौन क्या है? मैं हूं ना, या आप हैं? तो मैं अपना जो पर्सनल है वो ला रहा हूँ, वही ओरिजिनल है, बाकी कुछ ओरिजिनल नहीं, बाकी कुछ ओरिजिनल थोड़ी ना है। मैं कैसे जिंदगी को देखता हूँ उतना ही ओरिजिनल है। मैं इसको या किसी इसकी कहानी को या किसी उसमें मैं कहाँ आता हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप को कहाँ डाल पाता हूँ, वो जो है ओरिजिनल है। बाकी सब तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल जब तक नहीं होगा, जब फिल्म मेकर को जब तक आप नहीं देखेंगे उस कहानी में या उसके नजरिए को, तब तक तो वो फिर ऐसे ही है, फिर वो प्लास्टिक सी चीज है, उसमें जेन्युइन इमोशन नहीं। हेलो। हाँ एक पॉलिटिकल फिल्म जब हम बनाते हैं, आपको क्या लगता है, आप उसमें हम सटल रहना चाहिए या आउट एंड आउट पॉलिटिकल रहना चाहिए उस फिल्म में? यार, पहले तो सटलिटी या नॉन सटलिटी वो आपकी फितरत है, आप जाने, मैं आपकी फितरत में तो नहीं घुसना चाहता, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फिल्म और प्रोपेगेंडा फिल्म में फर्क है। तो आप समझिए, अब आप, कई लोग
आपकी फितरत सटल है या आपकी फितरत में थोड़ी बारीकी है या थोड़ा आप सॉफ्टली चीजों को के अंदाज में कहते हैं, उसमें कुछ नुआंस है कि नहीं वो है, या फिर आप ब्लंट है, फोर्सफुल है, एग्रेसिव है, वो तो आपकी फितरत है। आप अपनी फितरत को मत बदलो। देखिए, आप में और दूसरे की फिल्म में आप है, क्या क्या फर्क है? फिल्म मेकिंग जो है वो थोड़ा सा घमंड का काम भी है, इट्स एन एक्ट ऑफ एरोगेंस, और साथ साथ वो थोड़ा बहुत ही श्रद्धा का काम भी है, इट्स एक्ट ऑफ ग्रेस एंड एक्ट ऑफ सबमिशन। तो जो माध्यम से आप बड़े नहीं हैं, तो माध्यम के सामने आप सजदे में, लेकिन आप थोड़े से तो एरोगेंट है ना कि मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी तो बहुत लोगों ने सुनाई है, मैं आप क्यों सुनाना चाहता हूँ? तो आप ये कह रहे हो कि मेरी कहानी भी सुनो, मेरी फिल्म भी देखो। बट अगर आप एरोगेंट हो गए मीडियम के सामने, अगर आप जो माध्यम है सिनेमा के सामने, आपको सजदे में होना पड़ेगा। ये ट्रिक है, ये कॉम्बिनेशन आपको रहना पड़ेगा। आप मीडियम के सामने आप अपनी गुरूर भी रखो, या आप अपना एरोगेंस भी रखो, और आप साथ साथ मीडियम के सामने थोड़ा झुक जाओ। वो दोनों वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप अपनी फितरत जो है वो मत बदलो। आप मत मुझसे पूछो कि क्या मुझे सेटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बताओ, आप सेटल हो कि नहीं हो? आप जैसे हो वैसे रहो। आप अपने आप को खोजो, आप में आप अपने अंदर टटोलो कि आप में क्या खासियत है, आपको क्या फिल्म क्या है, आपको क्या मूव करता है, आपको क्या चीज पसंद है। आप ही फर्क हो, मतलब आप, यू कैन ओनली, यू आर द डिफरेंस बिटवीन दैट फिल्म मेकर एंड दिस फिल्म मेकर। आप अपने को खोजो, अपने आप को खोजना ही सबसे बड़ी बात है। आप कौन हो? जिस दिन आप वो ढूंढ लोगे, उस दिन आप नकल मत करो किसी की। इसलिए फिल्म मत बनाओ क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड कहती है कि सुधीर मिश्रा जैसी फिल्म बनाओ, बट नहीं, आपका बॉयफ्रेंड कहता है कि आप अनुराग कश्यप जैसे हो ना। आप अगर डेविड धवन बनना चाहते हो तो आप डेविड धवन बनो। आपकी फितरत क्या है? आप अंदर से अपने आप को ढूंढो और आप अपनी फितरत के हिसाब से करो। सर वही यही कंटिन्यू करते हुए, जैसे चमेली आपको बीच में आप आनंद आनंद जी का देहांत के बाद आपको फिल्म मिल गया था ऐसे। हाँ, आप उसके पूरे इसके प्रोसेस में नहीं थे स्टार्टिंग से, फिर बाद में आप ज्वाइन हो नहीं नहीं, गए, फिर आप चमेली के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। चमेली एक आनंद बलानी बना रहे थे, मैं जानता था उनको अच्छे से। वो मैं भी पीएनसी के लिए फिल्म बना रहा था, वो भी फिल्म बना रहे थे। उनका देहांत हो गया, तो मुझसे उनकी वाइफ प्रीति नंदी साहब ने कहा, सबने कहा, क्योंकि मैंने इसरात बनाई थी और आनंद जो थे वो इसरात की सुबह नहीं से बहुत इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप फिल्म बनाओ। उनकी पत्नी ने भी मुझसे कहा फिल्म बनाओ, तो मैंने कहा यार मैं दूसरे की फिल्म नहीं बना सकता। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा क्या करोगे, सेट है। और तो उस कंस्ट्रक्शन में मैंने, शिव कुमार सुब्रमण्यम ने और स्वानंद किरकिरे ने एक कमरे में जाके 10 दिन में दोबारा स्क्रिप्ट लिखी, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी और दोबारा शूट हुई फिल्म। तो कहानी का जो आइडिया है और जो कहानी का मूल जो है स्वरूप है वो अनंत का है, उसको लेके हमने स्क्रीन प्ले फिर से लिख के एक फिल्म बनाई, उसी एक्टर को लेके, और करीना और उनके साथ बन के हमने एक नई फिल्म एक तरह की बनाई। तो मैं तो नहीं बना सकता ना किसी और की फिल्म, जिससे लोग बोलते हैं कि यहाँ तक किसी ने बनाई उसके आगे आप बनाना शुरू करो, तो वो कैसे, वो मैं किसी और के दिमाग में कैसे घुसूंगा, मैं किसी दूसरे के दिमाग में कैसे अंदर जाऊंगा। तो वो मेथड था। मैं आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन कि आप 10-12 दिन में बैठ के एक नई स्क्रिप्ट लिख के शूट कर दो। तो लेकिन दैट्स हाउ इट वाज। सर तो आपने एफबीआई में फॉर्मली तो पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वहाँ पे आपने, आपके भाई थे और बहुत सारे जी, फिल्म मेकर्स वो टाइम से निकले, तो वहाँ पे आपका
क्या एक्सपीरियंस था, और वहां से आपका लर्निंग क्या कैसे स्टार्ट हुआ, क्या? नहीं, एफटीआई बहुत उस जमाने में एक आजाद ख्याल जगह थी। अलग अलग तरह के लोग थे वहां पे। कई लोग जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे, बहुत साल पहले थे, वो भी वहीं घूमते रहते थे। उस जमाने में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का माहौल बहुत इंटरेस्टिंग था और अलग था, और मुझे लगता है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं वो, आप कहीं पे भी जाते हो, चाहे कोई भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी थी और अलग अलग तरीके की जगह थी उस जमाने में, जहाँ एक एकेडमिक और खलबली थी और सवाल थे, और लोग जो थे वो थोड़ा सा एजिटेटेड थे, और थोड़े फ्रॉड भी थे। कई, ऐसा नहीं कि हर चीज अच्छी थी। तो उस माहौल में मैं एफटीआई में था। मेरा भाई क्योंकि था, तो मैं यहाँ पे मुंबई में काम करता था, असिस्ट करता था, और जब भी टाइम मिलता था, जो उस वक्त टाइम काफी था क्योंकि इतना काम तो था ही, तो जब भी वक्त मिलता था तो हफ्ते में 3-4 दिन तो वहीं रहता था अपने भाई के कमरे में। तो वहां से सीखा बहुत, क्योंकि वो लोग खुद सीख रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे। तो मेरा भाई जो भी सीखता था, क्लास में होता था, जो भी होता था, वो बताता था मुझे। मैं उसको बताता था जो प्रैक्टिकली मैं सीख रहा हूँ, और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, ऑन द जॉब सीख रहा हूँ। तो मैंने एफटीआई के आजाद ख्याल माहौल से बहुत कुछ लिया। उसके बाद मैंने जब खुद फिल्म असिस्ट कर रहा था, जिनको भी, चाहे विनोद चोपड़ा हो, चाहे सईद मिर्जा हो, चाहे कुंदन शाह हो, तो मैंने कुंदन के साथ फिल्म लिखी जाने भी दो यार हो। मैंने सईद मिर्जा के साथ मोहन जोशी हाजिर हो और बहुत काम किया, गुरु ये सब है मेरे। तो वो भी एफटीआई के थे, तो उनका भी, तो एफटीआई का भी एक असर मेरे पे काफी है। मैं आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू, मतलब मैं एफटीआई का नहीं हूँ ऑफिशियली, बट द एटमोस्फियर ऑफ द फिल्म इंस्टीट्यूट और वहाँ के स्टूडेंट्स का मेरे ऊपर बहुत असर है, उसका माहौल का। और क्या होता है ख्याल, मतलब वो जो है ना, आजाद आप हो, आप ये सोच, मतलब बंधे नहीं हो कि इस तरह से बनाना है, उस तरह से फिल्म बनानी है। आप सोचो, आपका एक क्रिएटिव जो फ्रीडम है, वो जो पूरा बाउंस था लाइफ का, जो माना, मतलब बंधो मत किसी एक चीज से, ट्रेडिशन से को फॉलो भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो। आप अपने आप को इन्वेंट कर सकते हो। आपको ट्रेडिशन का हिस्सा बनना है तो आप ट्रेडिशन का हिस्सा बनो, आपको अलग हिस्सा बनना है तो आप अलग बनो, आपको किसी दूसरे मुल्क के ट्रेडिशन का हिस्सा बनना है तो वो बन जाओ। आप कहीं पे भी खोज लो अपने आप, आपको जहाँ जो जगह अपनी दिखती है। तो वो जो एटमोसफियर था, जो है ना, कि वो मजेदार था बहुत। एक खलबली थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब घटक के बारे में भी बात, और राय बाबू के बारे में भी बात, सत्यजीत रे, गुरुदत्त के बारे में भी बात, फ्रेंच के फिल्म मेकर्स के बारे में बात, इटालियन फिल्म मेकर्स के बारे में भी बात, आनंद पटवर्धन के बारे में भी बात। तो मतलब हर तरह की सिनेमा, हर तरह की चीजें, एक सवाल, एजिटेशन, थोड़ा जिंदगी से, पॉलिटिक्स से, लाइफ से थोड़ा कनेक्शन रखो। वो माहौल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। आई रियली आई ओ लॉट टू एफटीआई। अभी आप एफटीआई स्टूडेंट से मिलते हैं तो आप में वो दिखता है क्या, कुछ अलग दिखता है, कुछ नया सा कुछ दिखता है, या पता नहीं बस मुझे, पिछले आपको कहाँ है वो एफटीआई के, मिलता हूँ कभी कभी। जो मेरा कैमरामैन है सचिन कृष्ण, जो एफटीआई का है। आजकल पूरा साउंड डिपार्टमेंट, जिसको भी आप साउंड में काम करेंगे तो सब एफटीआई के ही होते हैं। और मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जो है, मतलब एफटीआई के, बहुत सारे नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर फिल्म मेकर, मतलब विशाल बर्गा एफटीआई का नहीं है, अनुराग कश्यप एफटीआई का नहीं है, अनुभव सिन्हा एफटीआई का नहीं है। बहुत सारे फिल्म मेकर, सुभाष कपूर एफटीआई का नहीं है, रजत कपूर है एफटीआई का, राजू हिरानी है, श्रीराम राघवन है, वो भी बहुत, श्रीराम बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर और अपनी तरह से पॉलिटिकल है। तो तरह तरह के लोग हैं, मतलब विनोद चोपड़ा एफटीआई का है, सईद मिर्जा एफटीआई के हैं, केतन मेहता जिनको मैं बहुत एडमायर करता था वो एफटीआई के हैं, शेखर कपूर नहीं है। तरह तरह से लोग आए, लेकिन
यंगर फिल्म मेकर जो है, आनंद गांधी नहीं है एफटीआई का, अमित मसूरकर नहीं है। अभी आपके राइटिंग टीम में जैसे अभी नए नए अभी नए नए जैसे लोग आते हैं, जैसे हॉस्टेजेस हो गया या उससे पहले भी हो गए नए, जैसे आप शिव शिव सुब्रमण्यम के साथ काम करते थे, फिर उसके बाद रुचि, तो आप कैसे मतलब आप अभी भी फिल्म्स बना रहे, तो अभी आप अपने आप को रिइन्वेंट करने के लिए नए नए लोगों के साथ काम करते हैं कैसा? हाँ, मतलब एक नए लड़के का जो है अभी बहुत सारे, जैसे अभी मैं 2-3 लोग हैं मेरी टीम में, एक शिवा वाजपेयी, एक निसर्ग मेहता, एक मयूर घोष है, जो मतलब नए नए लोगों के साथ आप काम करते हो तो एक तो क्या है, मैं थोड़ा सा अपनी तरह का काम करना चाहता हूँ, तो बड़ा सीनियर कोई राइटर होता है तो फिर वो कहीं और ले जाता है काम को, तो मैं थोड़ा, मेरी फितरत जो है, तो एक तरह से यंगर लोगों के साथ काम करो तो आपको उनकी एनर्जी भी मिलती है, उनका नजरिया भी मिलता है उनको, प्लस फिर आप यू नो वो एक गुड प्रोको सा होता है, वो सीखना चाहते हैं। और मैं एक तरह से एक वर्कशॉप सी होती है जिससे एक स्क्रिप्ट इमर्ज होती है, फिर उससे मैं अपना काम, मेरा अल्टीमेटली जो फिल्म बनेगी वो तो मैं जो चाहूंगा वो बनेगी, उससे वो कुछ सीख ले जाते हैं और एक करियर ले जाते हैं और अपनी जिंदगी ले जाते हैं, है कि नहीं? सबको अपना अपना एक नजरिया है। तो आई लाइक वर्किंग विद यंगर पीपल, आई लाइक वर्किंग विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। हमेशा मैंने काम किया बहुत सारे, चाहे वो स्वानंद हो, चाहे वो अ, रुचि हो, चाहे शिव हो, चाहे आज शिवा हो, बहुत सारे हमेशा ही, मतलब कितने सारे लोग जो आप हजारों में देखो तो हर आदमी नया है। वो शांतनु मोहित्रा की भी पहली फिल्म है, वो शाइनी की पहली फिल्म है, वो चित्रांगदा की पहली फिल्म है, और स्वानंद की पहली फिल्म है। कितने लोग हैं जो, ज्यादातर लोगों की, बहुत लोगों की पहली फिल्म, राम कपूर की पहली फिल्म। सर अभी आप एडेप्टेशंस आपने कर रहे हैं, जैसे आपका दास देव मूवी था, तो वो एक तरह से एडेप्टेशंस था, तो एडेप्टेशन में आपका वे ऑफ वर्किंग में कुछ डिफरेंस होता है, जैसे आपको हाँ, बाकी होता सारे है। आइडियाज? आपकी ना, आप थोड़ा बन जाते हो, लेकिन आप अडेप्टेशन को, अगर एक सब्जेक्ट को आप वैसे लो जैसे कि निजी, मतलब कोई एक्चुअल लाइफ हो, तो मतलब हर चीज किसी न किसी चीज पे तो बेस्ड होती है। कोई ऐसे तो मैं मनगढ़ंत कोई भी बात अचानक जो कभी हुई नहीं है, तो विरासत तो आपकी है ना। आप, आपकी जिंदगी में आपके दिमाग में सारी वो कहानियां हैं जो आपने पढ़ी हैं, आपके दिमाग में सारी वो फिल्में हैं, और सारी जो कविताएं हैं, सारी जो पेंटिंग है, सारा जो म्यूजिक है, तो आपके दिमाग में तो है ना। तो कहीं तो वो सोर्स से आप ले रहे हो ना। लेकिन जब कोई अडेप्टेशन होता है तो वो एक दूसरे मीडियम में होता है, उससे आप कुछ चीजें ले सकते हो। मनु जोसेफ की सीरियस मैन पे मैं फिल्म बना रहा हूँ। मनु जोसेफ की जो कृति है, जो नॉवल है, वो अपने आप में है। वो फिल्म जो है वो उसको डुप्लीकेट करने जाएगी तो नहीं कुछ होगा। फिल्म उससे इंस्पायर होकर कुछ और कर सकती है, अपने आप में वो कुछ बन सकती है। उसकी नकल करने की कोशिश करेगी तो वो फेल करेगी, क्योंकि वो माध्यम दूसरा है। वो जो नॉवल में जो मुमकिन है वो सिनेमा में मुमकिन नहीं है, जो सिनेमा में मुमकिन है वो नॉवल में मुमकिन नहीं। तो आपको उससे इंस्पायर होके उसका कुछ एलिमेंट लेके, वो बेस तो उसी नॉवल पे है। तो अगर मनु जोसेफ की सीरियस मैन नॉवल नहीं होती तो सीरियस मैन फिल्म नहीं होती। तो वो इंस्पिरेशन जो है वो तो क्लियर है, लेकिन और उसके जो एटीट्यूड से, जैसे मनु जोसेफ का जो नजरिया है दुनिया को लेके, उस नजरिए को कुछ पकड़ के अगर वो आप मैच करता है आपका और उनका, तो आप उसको पकड़ के फिर आप कुछ और करते हो। तो वो थोड़ा सा, उसको कैसे आप रीराइट अपने हिसाब से करते हो, अपने माध्यम में, अपने हिसाब से आप अलग कैसे करते हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। बट मजेदार है, मुझे बहुत मजा आया नॉवल, मनु जोसेफ के नॉवल पे काम, और वो कमाल की किताब है।
So we are looking forward to see that movie, sir.